So we left our hotel at 6 o'clock. Now we are on the way to Varanasi because to go to Sikkim we have to go through Varanasi, Siliguri, and then there are a few other districts or city we will see or find on our way. So we started in the morning. Now I think we'll try to see if at all we can stop in Varanasi first. We will try not to take any stoppages in between. I'm expecting fog maybe from 7 o'clock, but so far we haven't experienced any fog, so not sure how the road or how is it going to be. So let's see. If we do not experience any fog, then I think we can drive without any issues. So we have reached Rewa. Now we are going through the town, and there is one waterfall, small waterfall, we can say a stream flowing in the middle of the city, and it is beautifully maintained. Let's see if we can show you once we reach there. It's early in the morning, that's the reason not much vehicle on the road. Otherwise, I mean, this part always remains okay. If once you go a little inside, it gets a little jam-packed. We've experienced it while going to Prayagraj during Kumbh Mela. So this is the waterfront, which is in the middle of the city. Yeah, and this side you can see. Even here you can see a little bit. Yeah, not much. Well, this is a beautiful place. They have nicely maintained. It's a small waterfall. It's a stream, and then on that you can see a little bit of, I think maybe 5 feet height waterfall is there in the middle of the city. हम अभी यूपी में हैं, मिर्ज़ापुर यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर है. तो उसके बाद वाराणसी होगा. वाराणसी कुछ 110 किलोमीटर ऐसे होगा यहाँ से. तो ये पूर्वांचल राज्य है यूपी के. टाइम दिख रहा होगा 9:23. यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा इस कोने में. तो ये पूर्वांचल है उत्तर प्रदेश में. अब देखिए कोहरा, देखिए फॉग. ऐसे लगता है कि सुबह के 5 या सुबह के 4 बजे हो. इतना कोहरा है, ज़बरदस्त. बहुत रिस्की भी है ड्राइविंग. इसमें हमारा ऐसा ही एक्सपीरियंस था हम लोग जब चेन्नई से आ रहे थे. बहुत फॉग मिला था हमें आंध्र प्रदेश में. यहाँ पे भी कुछ सीन वैसा ही है. तो एकदम ही आराम से चलाना होगा. तो सब हैज़र्ड लाइट भी ऑन कर देता हूँ. बस लाइट भी जला लिए तो आराम से. अराउंड 9 या 9:30 में फॉग देखना चालू हुआ हमको. और अभी टाइम हुआ है कितना, 11:20. और रास्ते का हालत देखिए, फॉग का हालत देखिए. कोहरा मतलब जाने का नाम ही नहीं ले रहा है. वी आर अबाउट टू रीच वाराणसी और टाइम है 11:21 एंड ऐसा लग रहा है कि इट इज़ मॉर्निंग 5 o'clock और मॉर्निंग 4 o'clock ऐसा लग रहा है. थोड़ा सा यहाँ पे दिखाओ, देखो यार. आलिशा को भी ब्रेकफास्ट करना है. ब्रेकफास्ट के लिए कुछ रेस्टोरेंट भी खुला नहीं दिख रहा है. ऐसा है, लग रहा है सब भोरे बेच के सो रहे होंगे. तो हम लोग यहाँ रुके इस जगह पे. तो आलू पराठा मंगाया, आलू पराठा और गोभी पराठा. एंड that is our, normally I don't eat lunch, I only eat breakfast, so this is my breakfast as well as lunch today. I also had my protein cake, what I bought from home. Car is parked outside and you can see it is still foggy, very foggy. About the food, मस्त गोभी पराठा बनाया, एकदम आलू पराठा भी मस्त बनाया. ये अचार जो होते हैं ग्रीन वाले, चटकारा वाला, मस्त एकदम. ये चटनी है, ये अचार है. तो बहुत दिनों बाद ऐसा वाला चटनी और अचार खा रहे हैं. लेकिन आलिशा को ठंडी नहीं लग रहा है. आलिशा वांट्स टू रिमूव हर जैकेट. So this is one of the district or city in Bihar. I mean,
And we are on the highway. And we are on the highway. So actually, we have been experiencing. I mean, as soon as we entered Bihar from MP, this is the worst place. Bihar is the worst place. Bihar still did not change. I mean, this is to me in India. If you have to live and you don't have any other option, Bihar would be the last place to live. People have no civic sense. I mean, every vehicle is coming from the wrong side. I mean, not here. It is still one way. On highways, it is so dangerous. There are tractors coming, buffalo cart coming, a cycle, auto rickshaw, everything from the wrong side. Everything from the wrong side. It is very, very dangerous. And people have no sense at all. When you hear the name Bihar, the instant thought comes in your mind is like, it's a place where people are not disciplined. It's a place where people are dirty. It's a place where people does not follow any rules. What I have seen, at least on the road, it's absolutely true. Imagine, you're going on a highway and look at this. Look at the condition of a highway. बहुत टाइम से हमको ये ट्रक्स दिख रहा है. So they have not occupied the entire road. They occupied one side of the road. At least एक साइड से खुला है. उतना कॉमन सेंस तो है. चलो, पता नहीं क्यों, किसके लिए, लेकिन बहुत स्लो जा रहा है. एकदम लंबा लाइन है, पीछे और लंबा लाइन है. एटलीस्ट लगभग हमने अभी तक 150 ट्रक्स क्रॉस किया होगा लाइन पे, एक ही लाइन पे. अभी भी है लाइन बहुत आगे तक. So we do not know what road is this, because this is not a national highway. कहीं से तो घुसा दिया. इतना खराब रोड है, एकदम नैरो. पहली बात तो एक गली से घुसा दिया, एक गली से, फिर यहाँ से जा रहे. तो गूगल तो दिखा रहा है सही, लेकिन रोड बहुत ही ख़राब है. एकदम नैरो है. पहली बात तो रोड ऐसे मतलब ऊबड़ खाबड़ नहीं है, रोड नैरो है, लेकिन ये तो मतलब कुछ गांव के रास्ते दिख रहे हैं. रास्ते गांव के अंदर से घुसा के लेके जा रहा है. तो मे बी नेशनल हाईवे बन रहा होगा. दिस इज़ द प्रॉब्लम. एट टाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस्ड दिस while going to Delhi also, because of road constructions. They closed down in one place and then फिर कहीं गांव से घुसा दिया. वो भी इतना दूर ना रोड है कुछ. एटलीस्ट यहाँ पे रोड तो है, लेकिन कहाँ पे जाके अभी कट होगा पता नहीं. Time is 5:30 and we are still in Bihar. It's a single lane. But look at this. It feels like as if time is 9:30, 10 o'clock and we are driving in a pitch dark road. The time is only 5:30. If this was Nagpur, I think this time it would still be very bright. I know sun goes down a little early during winter, and this side, in Bihar side, the sun goes down a little early. But look at this. I haven't experienced this kind of situation for quite a long time, where sun goes down early. It looks a little odd to me right now. We're crossing small towns, and this is one-way road. I mean, there are only 2 lanes. I don't know what it is called. So you can see the oncoming traffic, and we're also driving on the same road. There are no barricade in between, no divider in between. खतरनाक है पूरा एकदम. भूतिया रोड है सब. Wow, high beam. This is the problem with a two-way road. High beam is very difficult to handle. अभी भी कुछ 494 किलोमीटर बचा हुआ है पूरा गैंगटॉक तक, लेकिन उतना तो कवर नहीं करेंगे. मे बी वी विल ट्राई फॉर 200 किलोमीटर्स मोर. इतना सिंगल लाइन मिला कि थक गए पूरा. तो अभी चाय पियेंगे
and then I'll ask maybe Amrita to drive. Not feeling cold? Stupid? Huh? Gangtok दिखा रहा है another 453. 7:30 हुआ है बस. 7:30 हुआ है, लेकिन हम पूरा किलोमीटर तो कवर करेंगे नहीं. आज सोच रहे हैं कि अनदर 150 या 200 ट्राई करेंगे, लेकिन ड्राइविंग इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि फॉग देखिए, कोहरा पूरा आ रहा है. तो इफ़ यू ड्राइव, अभी तो विजिबिलिटी है, द मोमेंट यू इंक्रीज द स्पीड द विजिबिलिटी रिड्यूसेस. और उस ऑन टॉप ऑफ दैट अभी देखो आगे सामने से एक ट्रक या कुछ जा रहा है. आई मीन तभी इसका तो 2 लाइट है, किसी किसी का तो लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चलता है. वो सामने जाने के बाद पता चलता है. और फॉग है, उसके लिए वो डेंजरस है. तो इसीलिए मैं धीरे धीरे ड्राइव कर रहा हूँ. मेरे रास्ते से बॉडी भी टायर्ड हो रहा है, तो वी बोथ आर टॉकिंग सो दैट आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी. तो देखते हैं. और 7:30 मतलब 8:30 या 9:30 तक ड्राइव करेंगे, 9 o'clock तक ड्राइव करेंगे. उसके बाद कहीं पे हॉल्ट करेंगे आज. देन नेक्स्ट डे वी विल कवर द रेस्ट. देखता हूँ क्या होता है. आई विल ट्राई टू कीप मे बी 300 यहाँ पे ढाबाज बहुत अच्छे, बहुत सारी लाइटिंग्स. हाँ, ये चीज़ अच्छा लगा कि ढाबा जो है यहाँ पे सारे, आई मीन अच्छा है कि बुरा है, खाना वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उनका लाइटिंग ज़बरदस्त है. पूरा रोड को पूरा कैप्चर किया हुआ है. मतलब अगर ढाबा आपकी नज़रों से छूट नहीं सकता. हाँ, अगर ढाबा लेफ्ट साइड में है तो उन लोगों ने क्या किया, वो जो उनके जो लाइटिंग्स है उन लोगों ने राइट साइड में भी लगाया हुआ है. वो भी बीच रोड के बीच में कुछ बैम्बू वम्बू लगा के उसके ऊपर से लगाया हुआ है. तो यू कैन नॉट मिस, आपको लगेगा कि यहीं पे जाना है. सारे ढाबा ऐसे ही है यहाँ पे. और गूगल अपने आप से कुछ रास्ता दिखा रहा था टू अवॉइड द टोल. पता नहीं गलती से कहीं क्लिक कर दिया होगा, कहाँ से घुसा आया पतले रास्ते से. वहाँ पे बहुत टाइम खा लिया. पता नहीं वही रास्ता था होगा, पता नहीं. अभी हम लोग भी इस रास्ते में पहली बार ही आए. बट बिहार, आई कैन से आई बीन टू सो मेनी प्लेसेस. बिहार्स रोड and are the worst. People don't follow rules. Traffic is worst. The only thing which Amrita liked is the pani puri. She had pani puri. कैसा था pani puri? पानी पूरी एकदम, मतलब एकदम बैंग ऑन. हाँ? बिल्कुल. और क्लीन भी था वो. बिल्कुल, मतलब फ्लेवर, तीखा, नमक, सब कुछ परफेक्ट. फॉग देख सकते हो कैसे आ रहा है, कोई जा रहा है सामने से पता ही नहीं चल रहा. इसलिए भले ही आप थोड़ा स्लो ड्राइव करो, आप सेफ रहोगे इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग टू फास्ट. मैं तो स्लो ड्राइव कर रहा हूँ 65-70. पीछे से कोई भाई फॉग है, ठुक जाएगा गाड़ी.